guys, this is Pooja Bera and welcome back to my channel. Hope you guys are doing great and staying safe at home. For today's video, I'll be doing a girl talk part 2. Part 1 में मेरे से काफी सारे questions छूट गए थे and you guys seem to feel a little bit disappointed because of that. But never mind, I'll be covering all of those questions in today's video. Before getting into this video, make sure you give this video a big fat thumbs up, comment using the hashtag YouTubeBeraFam, make sure you guys subscribe and also press the little bell icon. And I guess बहुत ज़्यादा बकबक तो मैंने कर ही ली है. अभी let's quickly jump right into the video. I have a bunch of interesting questions to answer. Is it okay to remove all the hair down there? Now that's your personal choice. I personally prefer कि नीचे के बाल पूरे तरीके से निकालने नहीं चाहिए. That should be trimmed time to time because periods के वक्त these hair are the ones which protects vagina during periods. I know बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा. Why is it not allowed to eat papaya during pregnancy? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है. You are not supposed to eat a कच्चा papaya during pregnancy क्योंकि उससे abortion हो सकता है. On the other hand, अगर आप पका papaya खाओगे तो that is not a problem during pregnancy and I am sure most of the लोगों को ये पता नहीं होगा. So the most frequently asked question was, which sanitary pad do I use? How do I get rid of rashes during periods? Trust me guys, during my teen times, I used to get a lot of rashes. And back then, I used to apply a moisturizer or a coconut oil just to feel a little bit better down there. But with time, I understood this is not a permanent solution. I need to switch to some sanitary pad that is meant for sensitive skin. क्योंकि मेरी स्किन तो सेंसिटिव है यार. मैं बहुत सारे सैनिटरी पैड्स यूज करने लगी बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड एवरी टाइम अंटिल आई फाउंड अ ब्रांड कॉल्ड कार्मेसी जिनके सैनिटरी पैड्स आर मेंट फॉर रैश फ्री पीरियड्स एंड सेंसिटिव स्किन के लिए वो बने हुए हैं. नाउ मैं ये ब्रांड क्यों रेकमेंड कर रही हूँ आपको. ये ऑर्डिनरी पैड्स जैसे नहीं है. ऑर्डिनरी पैड्स अगर आप देखने जाओ तो दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक. इनके जो सैनिटरी पैड्स के रेंजेस है दे आर नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, नो टॉक्सिक केमिकल्स, दे आर 100% टेस्टेड बाय गायनेक एंड दे आर मेंट फॉर रैश फ्री स्किन. इसका जो टॉप शीट है दिस इज मेड ऑफ अ कॉर्न फैब्रिक मटेरियल. काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड सूदिंग है स्किन के लिए एंड यू गाइज नो आई प्रिफर सैनिटरी पैड दैट इज बेस्ट फॉर माई स्किन. बैक शीट की मैं बात करूं, मटेरियल है काफी ज्यादा ब्रीदेबल है, बहुत अच्छे से ह्यूमिडिटी लेवल मैनेज करता है बिटवीन द स्किन एंड द सैनिटरी पैड. दैट्स व्हाट वी वांट ड्यूरिंग पीरियड्स राइट. मैं कार्मेसी के सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. ऑल्सो दिस सैनिटरी पैड्स आर अवेलेबल इन 3 साइजेस, large, XL and double XL based on अलग अलग period flow. If you guys have a medium blood flow, go for large. Heavy flow होता है, go for XL. और भी ज़्यादा extra heavy flow होता है, then go for double XL. I personally use large क्योंकि मेरा flow काफ़ी medium level का है. Also this sanitary pad comes with a disposable bag जहाँ पे आप dispose कर सकते हो sanitary pads ताकि hygiene level आप बहुत अच्छे से maintain कर पाओ. You guys could also use my coupon code that is Pooja05 to get 20% off on all the period products available on their official website. So why don't you guys check it out? They are also available on Amazon and Purple. Thus using razor darkens the skin and leads to growth of thick hair. So I personally think कि razor dark नहीं करता है skin. Definitely you guys need to maintain the hygiene level, right? आर्मपिट्स पे भी तो ही यू कैन गेट रीड ऑफ दोज डार्क आर्मपिट्स. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, आई पर्सनली फील येस थिक हेयर तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं बट सिंस आई हैव नॉट यूज्ड इट रेगुलरली सो आई डोंट थिंक सो आई एम द परफेक्ट पर्सन टू आंसर इट. जो ओकेजनली करते हैं आई थिंक थिक हेयर्स तो आते ही हैं उनको. इज इट ओके टू यूज अ वी वॉश टू क्लीन योर वेजाइना रेगुलरली? नाउ मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप हर रोज़ वी वॉश यूज़ करो अनलेस एंड अनटिल आपको इन्फेक्शन हो एंड आपके गायनेक ने उसे सजेस्ट किया हो. व्हाट आई फील, मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है कि वजाइना इज़ सेल्फ क्लीनिंग मशीन. मतलब वो खुद कैपेबल है उसका एरिया क्लीन रखने के लिए. सो आई डोंट थिंक कि वी वॉश ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करना चाहिए unless and until it is recommended by gynec and you do have any sort of infection. Why is it a norm for girls to not enter into a kitchen or touch any devotional item during periods? Indian society में ये चीज़ होता है and girls को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है when these things happen to them.
बट देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट, जो कि पेरेंट्स या सोसाइटी एजुकेट नहीं करता अबाउट इट। हाइजीन लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है व्हेन गर्ल्स आर ड्यूरिंग पीरियड्स, एंड व्हेनेवर यू ट्राई टू टच एनी फूड स्टफ और मे बी मिल्क, तो उसका खराब होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दैट इज वाई girls are not allowed to enter kitchen during periods. How to remove blood stains on clothes easily when on periods? I would suggest आप उस कपड़े को पहले गर्म पानी में भिगो लो, एंड थोड़े टाइम बाद you guys could go ahead use your normal detergent powder to just wash it off, बहुत easily निकल जाएगा। This has been my experience so far. Next question is, do you feel shy buying sanitary pad on your own from medical store? Do you feel uncomfortable carrying sanitary pad in front of men? Any instances, please let us know. First of all, this is a very interesting question. I pretty much love that. Yes, मुझे थोड़ा थोड़ा पहले शाय फील होता था सैनिटरी पैड लेने जाने के लिए। आई यूज्ड टू एवरी टाइम टेल माई मॉम कि मॉम प्लीज़ आप ला दो ना, मुझे नहीं जाना। इट इज़ प्रीटी मच ऑकवर्ड टू आस्क एन अंकल कि भाई सैनिटरी पैड दे दो, बट आई थिंक दिस शुडंट बी अ टैबू एनी मोर, ओके। मतलब गर्ल्स को कंफर्टेबल फील होना चाहिए आस्किंग फॉर पैड्स, एंड आई हैव फेल्ट अनकम्फर्टेबल कैरिंग सैनिटरी पैड। क्या था ना, स्कूल का टाइम था, लेट्स से कि कभी आपको पीरियड्स आ जाता है एंड यू डू नॉट हैव अ सैनिटरी पैड, ऑफ कोर्स यू आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ सैनिटरी पैड, एंड लेट्स से कि किसी भी लड़के ने गलती से आपको सैनिटरी पैड ले जाते हुए देख लिया, तो दैट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग सिचुएशन, बट दैट वाज बैक देन जब मैं मैच्योर्ड नहीं थी, सो दैट्स फाइन। ओके, next question is, hygiene wise what precautions should be taken during periods? I think you should change your underwear every day, and you should change your sanitary pads every 6 hours. Not only this, you should also wash your hands with a sanitizer every hour. So that's the hygiene you should maintain, I guess. What would be our reaction when you do not hit periods? ट्रस्ट मी, सारी लड़कियों को टेंशन होता है भाई पीरियड्स नहीं आया टाइम पे, तो कहीं हमें पीकॉस तो नहीं हो गया, कहीं हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि गर्ल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप अपने गाइनैक से बात कर लो, एंड उसके बाद जो भी मेडिकेशंस बोलते हैं वो फॉलो करो। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।